We were discussing about the covalent compound and covalent bond. In previous class, we discussed about the covalent bond. हमने पिछली क्लास में कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बात की थी. Now we are discussing the characteristic property of covalent bond. Now we are saying characteristic properties of covalent compound, and we have already discussed what are covalent compounds, but right now we are discussing what characteristic property they show. ठीक है, किस तरह की characteristic property वो show करते हैं. The first property which we are going to discuss is mostly covalent compounds are they have low melting and boiling point. Okay, they have low melting point and boiling point. This is the first characteristic property. ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड्स आर आइदर इन गैसियस फॉर्म और लिक्विड फॉर्म. सम ऑफ आर प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म, बट दे आर नॉट वेरी हार्ड. सो उनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है दे आर लो, बट देयर इज सम एक्सेप्शन ऑफ इट. इसका एक्सेप्शन हो सकता है कि जहां पर मेल्टिंग पॉइंट जो है, एक्सेप्शन मे बी पॉसिबल, जहां मेल्टिंग पॉइंट आपको बहुत हाई देखने को मिल जाएगा, दैट इज डायमंड एंड ग्रेफाइट. ग्रेफाइट का भी हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट. सो दीज आर द एग्जांपल्स. ठीक है, दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ high melting point and low melting point and boiling point. And the next characteristic property which we are going to discuss is that actually they are mostly found in, as I said, number 2, they are found in solid, liquid and gas. ठीक है, तीनों ही स्टेट में मिल सकते हैं. either they will be found in solid state or liquid state or gaseous state. In solid state you can see diamond, graphite is in solid state. In liquid state there are so many compounds such as water is in liquid state, ammonia is in liquid state. Okay, in gaseous form all the gases, oxygen, O2, N2, H2, CO2, these are found in gaseous state. So but they are covalent compounds. ये covalent compounds हैं. And the next thing is that basically covalent compounds are insoluble in water. अगर आप इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, दे आर insoluble in water but soluble in non polar solvent. ठीक है, they are soluble in non polar solvent. Actually what is non polar solvent, let me tell you. Carbon disulfide, carbon tetrachloride, benzene. So these are the compounds which are non-polar, and non-polar are those compounds which do not have polarity. अब ये polarity क्या होती है, non-polar क्या होता है, देखिए इसको ही समझिए आप. जैसे मैं एक कंपाउंड ले रहा हूँ, सपोज आई हैव वाटर. ठीक है, so in water you can see oxygen is electronegative element, hydrogen is less electronegative. So it will gain negative charge, okay, and hydrogen will gain positive charge because always electronegative element attract electron towards itself. That's why it gains negative charge, partial negative charge. So this is the negative part of water and this is the positive part of water. So that's why there two poles have been made. Okay, two poles have been made. One of the pole is negative pole, another pole is positive pole. And because of the formation of two different poles, this compound will be called polar. इसको आप क्या बोलेंगे, polar बोलेंगे. Okay, but there are some other compounds which are non-polar, such as carbon disulfide. Actually this is the structure of carbon disulfide. This is carbon, sulfur and sulfur. This is carbon disulfide. So in this case you can see sulfur is more electronegative than carbon, so it has negative charge, but negative charge is in opposite direction, equal opposite charge in opposite direction, so that's why they will balance each other. So it will become non-polar. तो ये non-polar बन जाएगा. तो ऐसे ही जो दूसरे जिनमें polarity 0 हो जाती है because of the any of the reason
कि वो डिफरेंट और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, सेम चार्ज है अपोजिट डायरेक्शन में, तो पोलैरिटी जीरो हो जाएगी। तो ये मोस्टली वही कंपाउंड्स हैं जिनमें पोलैरिटी नहीं मिलती है, तो इनमें कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। वाटर पोलर है तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। ओके, and the next property is that covalent compounds do not conduct electricity. Number 4, they do not conduct electricity। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करते? बेसिकली बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड ड्यू टू फ्री आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, और उनमें ये है नहीं, so that's why they are not able to conduct the electricity, but there is a exception of it। इसका भी हमारे पास एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है? we have graphite। Graphite is a covalent compound, but it allows electric current to pass through them because it has free electron। अभी बात करेंगे इसके बारे में। It has free electron, so it allows electric current to pass through, but basically covalent compounds are bad conductor of electricity। Okay, and the next thing is the so these are the some characteristics property of covalent compounds। तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टी हो गई है। अब अगर हम बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, वन ऑफ द 3 एग्जांपल्स वी विल स्टडी। फर्स्ट इज ग्रेफाइट, देन डायमंड, एंड देन फुलरिन। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स एंड क्वेश्चन इज बेसिकली आस्क्ड ऑन इट, है ना, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेट्स सी, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट, यस बोलिए बेटा। नो, एक्चुअली मर्करी इज अ एलिमेंट, एलिमेंटल फॉर्म में मिलता है वो आपको। कोवेलेंट कंपाउंड्स वो हैं विच फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, सो मर्करी डज नॉट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद इटसेल्फ, अब खुद से कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है। ओके, लेट्स सी नाउ कोवेलेंट कंपाउंड की बात कर रहे हैं। कोवेलेंट कंपाउंड, so if we are discussing about the covalent compound, one of the compound is graphite। okay, graphite, so graphite is one of the compound। तो सबसे पहले हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। एक्चुअली ग्रेफाइट हैज हेक्सागोनल layered structure। okay, graphite has hexagonal layered structure, it has hexagonal shape and it is layered structure। ये layer की तरह का structure है। so we can see the structure of graphite like this। this is the structure of graphite, these are the hexagonal layers, and as you can see each carbon in graphite is surrounded by 3 carbons। अभी आप देखेंगे, आप हर एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन से सराउंडेड है, लाइक दिस। सो दिस इज द वन लेयर, दिस इज वन ऑफ द लेयर ऑफ ग्रेफाइट। सो सिमिलरली सच टाइप ऑफ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट। लेट मी ड्रॉ वन मोर लेयर। such type of many layers are present in graphite, and in each layer each carbon is surrounded by 3 other carbons। okay, like this। okay, one more। yes, so I have drawn the 2 layers। so between 2 layers there is a weak force of attraction। okay, there is a weak force of attraction between these layers। हाँ बेटा बोलिए। okay, yes, I have already told you beta, as soon as you join the class please turn off your audios, है ना, आपका जो माइक है उसको ऑफ कर लें। whoever mic is on please turn off your mic। चलिए, so we were discussing that there is a weak force of attraction। एक सेकंड बेटा, अट्रैक्शन वीडियो नहीं आ रहा है। okay, now is it clear? okay,
Okay, beta. Actually, it may be from your side as well because here there is a full connectivity. तो एक बार आप ना कैमरा पर टैप कर दें if you are facing this type of problem, or you can rejoin. Okay. So because right now, yes, listen it carefully. Yes. तो देखिए वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ग्रेफाइट, हम बात कर रहे हैं ग्रेफाइट की. एक्चुअली ग्रेफाइट यू हैव सीन इन अ सेल, आपने सेल देखा होगा बेटा. सेल के अंदर देयर इज अ पेंसिल लाइक स्ट्रक्चर इन बिटवीन. ठीक है, दिस दैट पेंसिल लाइक स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, वो ग्रेफाइट का बना होता है. तो हम बात कर रहे हैं कि ग्रेफाइट जो होता है एक्चुअली वो दिखता कैसे है. तो ग्रेफाइट में अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे कार्बन होते हैं. ठीक है, ईच डॉट रिप्रेजेंट अ कार्बन. बेटा आपका ऑडियो टर्न ऑफ कर दें, जो वट एवर हुएवर स्टूडेंट इज कनेक्टेड एंड ओपन हिज ऑडियो, ऑडियो टर्न ऑफ करें. यस. तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि एक्चुअली क्या होता है कि ईच डॉट जो है वो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मैंने कहा कि ग्रेफाइट किसका बना होता है, ग्रेफाइट बना होता है कार्बन का. सो वी कैन सी दैट ग्रेफाइट इज ए एलोट्रोप ऑफ कार्बन. ओके, सो ऑल दीज आर कार्बन इन ग्रेफाइट, ऑल दीज आर कार्बन इन ग्रेफाइट. तो ग्रेफाइट में सभी कार्बन है. तो इस तरह से 6 कार्बन जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो एक हेक्सागोनल लेयर बनाते हैं. दिस इज द हेक्सागोनल लेयर. तो देयर आर सो मेनी हेक्सागोनल लेयर्स, और ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर इस तरह से प्लेस होती हैं. ठीक है, और व्हाट हैपन व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग विद अ पेंसिल, आपने देखा पेंसिल भी ग्रेफाइट का बनता है. जब आप पेंसिल से लिखते हैं तो ये जो लेयर्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर क्या होता है कि जब क्योंकि प्लेस होती है तो पेंसिल के ऊपर ये निकलती चली जाती है लेयर. सो दैट्स व्हाई हम लोग कहते हैं काफी सॉफ्ट होता है ग्रेफाइट जो है, इट इज सॉफ्ट इन नेचर. एंड ऑल द डॉट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन. जितने भी डॉट्स हैं वो सब किसके बने हुए हैं, कार्बन के बने हुए हैं. और इस तरह से जो लेयर्स हैं इनके बीच में जो फोर्स है, देयर इज अ वीक अट्रैक्शन फोर्स. इनके बीच की जो फोर्स है ना बेटा, दैट इज वीक अट्रैक्शन फोर्स. ठीक है. और दूसरी बात, अभी एक और जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें वो ध्यान रखना, क्योंकि कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन कम्स एट 6 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 4. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, जस्ट अ मिनट. ठीक है, लिसन केयरफुली. ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग दैट carbon electronic configuration of carbon is 2 and 4. That means 2 electron in inner shell and 4 electron in outer shell. तो क्योंकि कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग कहते हैं कार्बन क्या होता है, टेट्रावेलेंट होता है. टेट्रावेलेंट होता है यानी इट फॉर्म 4 बॉन्ड. इसको कितने बॉन्ड बनाने चाहिए, 4 बॉन्ड बनाने चाहिए. नाउ हियर यू कैन सी हाउ मेनी बॉन्ड्स ईच कार्बन इज फॉर्मिंग. हर कार्बन के पास कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, ईच कार्बन इज फॉर्मिंग 3 बॉन्ड. ओके, और बनाना कितना चाहिए, इट शुड फॉर्म 4 बॉन्ड. दैट मीन्स 1 बॉन्ड जो है इज लेफ्ट, और 1 बॉन्ड इज लेफ्ट बिकॉज ऑफ द 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो यहां पर हर कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा. ठीक है, ईच कार्बन विल हैव 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो मैं इसको शो कर देता हूं. ईच कार्बन विल हैव 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ई रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इट कैन मूव इन दिस लेयर. इस लेयर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन इजिली मूव कर सकते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एट ईच कार्बन दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये चीज ध्यान रखें, ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर क्यों है, क्योंकि ईच कार्बन हैज 1 फ्री इलेक्ट्रॉन. ओके, दिस इज द वन थिंग. एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि जैसे अपन ने कहा कि ग्रेफाइट कैसा होता है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट लेयर या सॉफ्ट स्ट्रक्चर कह सकते हैं आप, कि ग्रेफाइट जो है उसका स्ट्रक्चर जो है इट हैज सॉफ्ट स्ट्रक्चर. इसका स्ट्रक्चर आपको सॉफ्ट देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द लेयर, बिकॉज ऑफ लेयर. ओके, लेयर्स की वजह से. तो ये दो चीज आपको इसके अंदर बेसिकली ध्यान रखनी है. इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड इट इज सॉफ्ट इन स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ द लेयर्ड स्ट्रक्चर. ओके, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट. तो समटाइम इट इज आस्क्ड, तो इसको पूछ लिया जाता है कि इसका स्ट्रक्चर बनाएं आप, तो स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं आप. तो ये हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर बना रहा है. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट कोवेलेंट कंपाउंड. दूसरा जो कोवेलेंट कंपाउंड है उसकी बात करते हैं. एंड द नेक्स्ट कोवेलेंट कंपाउंड इज
Next covalent compound is diamond. Now we are talking about diamond. If we talk about diamond, तो एक्चुअली डायमंड कैसा होता है समझना आप यहाँ पर। पहले इसका स्ट्रक्चर ही बना देता हूं मैं। एक्चुअली डायमंड जो है उसमें जैसा हमने ऑलरेडी बता चुके हैं आपको कि कार्बन जो है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4 है। दैट मीन्स ईच कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड बना सकता है। तो डायमंड में जो कार्बन है, यहाँ पर जो मैं स्पीयर बना रहा हूँ बेटा, वो ईच स्पीयर रिप्रेजेंट 1 कार्बन। हर एक स्पीयर एक कार्बन को शो कर रहा है। तो दिस इज 1 कार्बन, 2 कार्बन, इस तरह से 3 and 4। तो जो 4 कार्बन हैं एक कार्बन से इस तरह से टेट्रावेलेंट शेप के अंदर कनेक्टेड रहते हैं, लाइक दिस। इस तरह से नीचे भी आपको मिल जाएगा, इस तरह से टेट्रावेलेंट होगा। ये भी आपको इस तरह से दिख जाएगा, ये भी टेट्रावेलेंट शेप बनाएगा। तो इस तरह से इनके जो शेप्स होते हैं वो टेट्रावेलेंट होते हैं। ठीक है, ईच कार्बन जो है, ठीक है, ईच कार्बन इज सराउंडेड बाय 4 कार्बन। तो यहां पर क्या इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये ऑल 4 इलेक्ट्रॉन्स आर बिजी इन दीज बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑल 4 बॉन्ड्स आर बिजी। तो इसका मतलब ये है कि नो फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है इसका मतलब क्या है कि ये कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो नो कंडक्टिविटी, तो हियर देयर विल बी नो कंडक्टिविटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता है, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी बात, आप इसका अगर ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर कैसा है, नेटवर्क स्ट्रक्चर है, नेटवर्क स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है बेटा ये रिजिड होता है। ठीक है, इट इज रिजिड, और बिकॉज ऑफ द रिजिड नेटवर्क स्ट्रक्चर इट इज वेरी हार्ड, बहुत हार्ड देखने को मिलेगा। इसके अंदर हार्डनेस जो होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब यहां पर कभी कभी क्या होता है, समटाइम द कंपैरिजन इज आस्क्ड, कंपैरिजन पूछा जाता है। तो हमें पता है ग्रेफाइट भी कोवलेंट कंपाउंड है, डायमंड भी कोवलेंट कंपाउंड है, बट ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। मैं अब डिफरेंस बता देता हूं आपको, लेट मी शो यू द डिफरेंस। दिस इज सपोज ग्रेफाइट एंड दिस इज डायमंड, सो वी कैन इजिली कंपेयर देम, हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो ग्रेफाइट जो हमने बताया इसका नेचर कैसा होता है, इट इज सॉफ्ट एंड इट इज हार्ड। ओके, दूसरा देखो, हमने ग्रेफाइट में क्या देखा था, ईच कार्बन वॉज सराउंडेड बाय 3 कार्बन। ठीक है, ईच कार्बन सराउंडेड बाय 3 कार्बन। तो हर एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन से सराउंडेड था। ठीक है, जबकि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डायमंड, तो इसमें क्या है, ईच कार्बन इज सराउंडेड बाय 4 कार्बन। बेटा टर्न ऑफ योर ऑडियो। ओके, ठीक है, सो 1 2। और तीसरा देखें, हमें पता है ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, तो इट इज गुड कंडक्टर। ठीक है, और गुड कंडक्टर क्यों है, बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। बट डायमंड में क्या है, डायमंड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर बिजी इन बॉन्डिंग, सभी बॉन्डिंग बनाने में बिजी हैं। तो इसलिए यहां पर ये क्या है, बैड कंडक्टर है ना। आप रीजन लिख सकते हैं कि गुड कंडक्टर इसलिए क्योंकि इसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सिंपली आप इनमें डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, डायमंड में और ग्रेफाइट के अंदर। ओके, और इसका शेप लिख सकते हैं, शेप कैसा है। जैसे ग्रेफाइट के शेप के बारे में अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट का शेप हमने कैसा देखा था, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, कि हमारे पास जो ग्रेफाइट था वो हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर था, जबकि डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा है, डायमंड जो बना रहा है वो टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, नेटवर्क। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, इसमें टेट्राहेड्रल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली ईच कार्बन इज सराउंडेड बाय 4 कार्बन। इसका अगर अपन इस तरह से शेप बनाते हैं तो ये जो शेप बनता है ना बेटा, इसको हम लोग टेट्राहेड्रल शेप बोलते हैं। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है और ये हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाता है। तो मोस्टली ये इस तरह से डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये भी तैयार करने होते हैं। ठीक है,
चलिए अब आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, थर्ड कार्बन कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, अब कोवलेंट कंपाउंड का थर्ड एग्जांपल हमारे पास में है, दैट इज फुलेरीन। ठीक है, दैट इज फुलेरीन। फुलेरीन, तो फुलेरीन क्या होता है, देखिए एक्चुअली फुटबॉल देखिए आपने, फुटबॉल देखिए आपने, तो फुटबॉल का जो शेप होता है, ठीक है, फुटबॉल इज अ स्फीरिकल शेप। ठीक है, तो इसी तरह से फुलेरीन जो होता है इट इज आल्सो स्फीरिकल, फुलेरीन भी स्फीरिकल होती है, तो फुटबॉल शेप में होती है इस तरह से, इट इज लाइक अ फुटबॉल, इट इज लाइक अ फुटबॉल, इस तरह से फुटबॉल शेप मिलता है आपको। बट इस फुटबॉल शेप के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इट हैज टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं फुलेरीन के अंदर। वन ऑफ द स्ट्रक्चर इज हेक्सागोनल एंड वन ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब एक तो हेक्सागोनल होता है और एक पेंटागोनल होता है, दो तरह के पेंटागॉन्स और हेक्सागॉन्स। तो इस तरह से देखिए कार्बन इस तरह से अपने आप को अरेंज करते हैं, लाइक दिस 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन इस जिस शेप में अरेंज है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेंटागन, पेंटागॉन, पेंटागॉन। ठीक है, और जहां 6 मिल जाएंगे आपको, जैसे इसको देखें आप, इट हैज 6 कार्बन, तो ये क्या है आपके पास, दिस इज हेक्सागॉन। ठीक है, और ऐसे आपके पास बहुत सारे शेप मिलेंगे, पेंटागॉन से मिल जाएंगे, हेक्सागॉन से मिल जाएंगे, लाइक दिस है। मैं अभी बता देता हूं, जस्ट अ मिनट, है ना, जस्ट अ मिनट, लेट मी टेल यू। एक्चुअली इसके अंदर जो बेटा हेक्सागॉन्स होते हैं दे आर 20, हेक्सागॉन्स जो होते हैं दे आर 20 हेक्सागॉन्स, और पेंटागॉन्स की बात करें तो देर आर 12 पेंटागॉन्स, 12 पेंटागॉन्स, और टोटल 60 कार्बन होते हैं, ध्यान रखना 60 कार्बन, यानी टोटल 60 कार्बन फॉर्म दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है हमारा 60 कार्बन से बनता है, इसलिए हम लोग फुलेरीन को ना C60 के नाम से भी जानते हैं, इट इज आल्सो C60 बिकॉज इट इज मेड अप बाय 60 कार्बन। तो ईच डॉट या ईच स्फीयर रिप्रेजेंट कार्बन, हर एक स्फीयर कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो कार्बन ने अपने आप को इस तरह से अरेंज किया है कि वो दो तरह के शेप्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, वन इज हेक्सागॉन। अब ये हेक्सागोनल या हेक्सागॉन्स को देखें तो यहां पर आपके पास 6 एंगल्स दिख रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेक्सागॉन्स। और इसकी बात करें तो इसको पेंटागॉन्स कह रहे हैं, बिकॉज इसके अंदर आपके पास देखें तो 5 एंगल्स दिख रहे हैं आपको, देयर आर 5 एंगल्स, लेकिन आपको पेंटागॉन्स मिलेंगे टोटल 12 इसके अंदर, और हेक्सागॉन्स यू विल गेट 20। ठीक है, बट दीज टोटल 12 एंड 20 शेप्स आर मेड अप बाय 60 कार्बन, टोटल 60 कार्बन से मिलकर के इसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसके अलावा इससे एक साइंटिस्ट ने जिसने इसको डिस्कवर किया था, उनके नाम पर इसको बंकमिंस्टर, बंकमिंस्टर, ध्यान रखना इसका एक और नाम है, इट इज कॉल्ड बंकमिंस्टर फुलेरीन भी कहा जाता है, फुलेरीन। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड बंकमिंस्टर फुलेरीन, तो ये भी नाम है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है आपको कि बंकमिंस्टर फुलेरीन क्या है। ठीक है, और इसे बंकी बॉल भी कहा जाता है, BUNCKY, बंकी बॉल। ठीक है, क्योंकि फुटबॉल की तरह दिखाई देता है, इसका शेप जो है इट लुक्स लाइक अ फुटबॉल, सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड बंकी, नहीं है बक्की बॉल, एन नहीं आएगा। ठीक है, इट इज कॉल्ड बक्की बॉल, इसको बक्की बॉल भी कहा जाता है। सो आई थिंक फुलेरीन इज क्लियर टू यू। ठीक है बेटा, ओके, वेरी गुड। एक बार दोबारा सुन लें, ओके नो प्रॉब्लम, दोबारा सुन लें एक बार। देखिए मैंने कहा C60, ठीक है, यानी 60 कार्बन से बनने वाला एक शेप जिसको हम लोग कहते हैं फुलेरीन, इट इज कॉल्ड फुलेरीन। ठीक है, अब ये जो फुलेरीन है एक्चुअली इट इज मेड अप बाय 2 टाइप्स ऑफ शेप, दो तरह के शेप से मिलकर के बन रहा है। वन ऑफ द शेप इज हेक्सागॉन एंड वन ऑफ द शेप इज पेंटागॉन। ठीक है, तो जो हेक्सागॉन्स होते हैं वो आपके पास में मेड बाय 20 कार्बन, मतलब ये 20 होते हैं टोटल शेप। ठीक है, और ये वाले शेप जो होते हैं दे आर 12 शेप। ठीक है, बट दे ऑल आर मेड अप बाय 60 कार्बन। तो ये हेक्सागॉन्स का शेप आपको इस तरह से देखने को मिलता है, ये हेक्सागॉन शेप है,
कार्बन इस तरह से अरेंज होते हैं, पेंटागॉन्स में कार्बन इस तरह से अरेंज होते हैं। ठीक है, 5 कार्बन का शेप है ये। तो आप देख सकते हैं 2 तरह के शेप्स आपको इस फुटबॉल में दिख रहे हैं। तो आपको फुटबॉल बनाना है, फुटबॉल में 2 तरह के शेप्स आपको शो करने हैं। ठीक है, लेकिन काउंट करके लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप बैक साइड वाला पार्ट है, यू कैन नॉट शो द बैक साइड पार्ट, तो आपको फ्रंट ही शो करना है। तो उस फ्रंट के अंदर आप कुछ तो हेक्सागॉन शो कर दें और कुछ पेंटागॉन शो कर दें। अवर पर्पस विल सर्व, हमारा पर्पस सर्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो मैंने 3 चीजें बताई हैं बेटा, आपको देखना। एक तो मैंने आपको बताया है ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट। एक मैंने बताया आपको डायमंड, डायमंड, एंड थर्ड इज फुलरिन, फुलरिन। सो देयर इज अ कॉमन इन ऑल, इन सब में एक कॉमन चीज अपन को देखने को मिल रही है। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द कॉमन इन ऑल? कार्बन, यस, दे ऑल, ओके, दे ऑल आर मेड ऑफ कार्बन। ये सब किससे मिलकर बने हुए हैं? कार्बन से मिलकर के बने हुए हैं। तो ध्यान रखें कि द थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन बट देयर फिजिकल अपीयरेंस इज डिफरेंट, देयर केमिकल कंपोजिशन इज सेम। इनका केमिकल कंपोजिशन की अगर बात करें, केमिकली तो सेम बने हुए हैं। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन, देयर केमिकल कंपोजिशन जो है दैट इज सेम, केमिकल कंपोजिशन इज सेम, बट व्हाट इज डिफरेंट? देयर फिजिकल अपीयरेंस, या फिजिकल अपीयरेंस लिख सकते हैं, अपीयरेंस जो है दैट इज डिफरेंट। ठीक है, वो डिफरेंट है। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, ये तीनों क्या है? दे ऑल आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, दे आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं? यानी जिनका केमिकल कंपोजिशन सेम हो, विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, जो कार्बन से मिलकर के बने, बट उनका फिजिकल अपीयरेंस देखने पर फिजिकली वो आपको अलग अलग दिखाई देंगे। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि वो आपस में एक दूसरे के क्या है? एलोट्रॉप्स हैं। तो ध्यान रखें, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरिन, दे आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, दे आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, इस चीज को ध्यान रखना है। तो ये कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। ओके, इसको रफ कर देते हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग विच आई वांट टू डिस्कस हियर, दैट इज होमोलोगस सीरीज। एक ये छोटा सा टॉपिक और कवर कर लेते हैं, दैट इज होमोलोगस सीरीज। ओके, तो होमोलोगस सीरीज किसे कहेंगे आप? होमोलोगस सीरीज is a series of those compounds having same general formula, ठीक है, same functional group but different hydrocarbon chain। ठीक है, इसको भी समझ सकते हैं कि if functional group okay same general formula या common formula जो है, फॉर्मूला दैट इज ऑल्सो सेम। ठीक है, बट देयर इज डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप बिटवीन टू मेंबर्स। ठीक है, 2 कॉन्जिगेटिव मेंबर्स, 2 मेंबर्स के बीच में आपको डिफरेंस कितना देखने को मिलेगा? CH2 का डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, देखिए, CH3OH, CH3CH2OH, नेक्स्ट इज CH3CH2CH2OH, CH3CH2CH2CH2OH। अब इन्हें कंसीडर करते हैं, लेट्स सी। सो अगर मैं यहां देखता हूं तो आप देखें इन दोनों में बोथ हैव सेम फंक्शनल ग्रुप OH। ठीक है, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मैं इनका जनरल फॉर्मूला की बात करता हूं दैट इज सेम, और वो जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+1OH। ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ ऑल। आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर इनको देखते हैं तो ये सेम आएगा। यहां पर आपको क्या करना है, जैसे बिकॉज देयर इज अ 1 कार्बन, यहां अगर मैं 1 रखता हूं फॉर्मूले में तो आपके पास ये आएगा। ठीक है, कार्बन अगर 1 रखते हो तो आप,
और कार्बन 2 रखते हो तो यहाँ ये फार्मूला आएगा, कार्बन 3 रखते हैं तो ये आएगा, और कार्बन 4 रखेंगे तो ये आएगा। दैट मीन्स कि ये इनका जनरल फार्मूला है, तो इन सबका जनरल फार्मूला सेम है, ठीक है। इनमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, और डिफरेंस कितने का दिख रहा है आप देखो, दोनों में CH2 का डिफरेंस है, इन दोनों में भी CH2 का डिफरेंस है, इन दोनों में भी CH2 का डिफरेंस है। तो ये तीनों चीजों को कवर कर रहे हैं, तीनों प्रॉपर्टी को कवर कर रहे हैं। जैसा हमने कहा फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, जनरल फार्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है, और दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स जो होते हैं फर्स्ट सेकंड, इन दो के बीच में, या थर्ड सेकंड थर्ड, या थर्ड और फोर्थ, इनके बीच में CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो ऐसे जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं दे आर कॉल्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, उन्हें मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज कहते हैं। और इनकी जो सीरीज बन रही है विद द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, दैट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज, तो उसको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, आपको समझ में आ गया होगा कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। एंड वन मोर थिंग, तो आप जैसे मैंने यहाँ लिखा है CH2 का डिफरेंस, तो यहां पर आप ध्यान रखें, इसे आप ये भी लिख सकते हैं कि 14 यूनिफाइड मास का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि CH2 का जो एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, दैट इज 14U। तो इनमें आप कह सकते हैं कि आपस में 14U का डिफरेंस है, 14 यूनिफाइड मास का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ओके।